it's time. So, Priyashi, I would like you to start the session and introduce. Sure. Sorry, I couldn't be there for the morning session. I should share that our building has a lot of COVID cases, nothing new, I'm sure, but I hope all of you are safe and healthy. Please take care, wear your mask, except when you're on the webinar. So, good afternoon once again, and welcome to the second edition and the second part of Why I Do What I Do, in conversation with educationalist Nikhil Purohit, with the artist from the Untitled series. The Untitled series is a digital exhibition using virtual reality space, and it was initiated on the onset of the lockdown. And these are artists whom we've admired, we have worked with in past. Some of them have been studio artists at the Priyashi studio, and some of them are people who I have recently discovered, and I thought that I should have a long-term association with them. So these actors who create the ideas and share their experiments, and the value which lies in their work is not just the work itself, but also the way they produce it, and also the act of making. These webinars may lead to growth or conflict, maybe a shift in a new perception, but what makes these exchanges meaningful is the exchange of the ideas, the skills, and the techniques, and in a broader sense, ideologies, which is the essence, leaving these participants who are involved in these webinars a little more enriched and a little more changed, a little more evolved and changed, but also a little more, since we have this time of social distancing, so they feel a little more comfortable, like I'm feeling looking at all of you. So welcome and stay tuned. Over to you, Mahesh. Thanks, Priyashi. Thank you for that. So I would just like to introduce Nikhil Purohit here, who is moderating the webinar for us. And thank you a lot for doing that, Nikhil. And just a second, I would just like to... Okay. So... Yes, I think we can move ahead and with the session. Just a second. Yeah. Yeah, so Nikhil Purohit is a visual arts professional working in the field of humanities and actively contributing to the cultural exchanges through arts administration. He has studied painting as a core subject and pursued ancient Indian history to understand the socio-cultural fabric of ancient civilization. Nikhil works with organizations and individuals to document their art practice and engages with art education to nurture and promote artistic endeavors. Based in Mumbai, his practice connects him with the Mohile Parikh Center for Visual Arts, the Indian Contemporary Art Journal, Amity School of Fine Arts, and similar pedagogical platforms. He heads the initiative Fande, dedicated to documenting the arts to promote heritage and its management. So welcome aboard, Nikhil. Thank you. I'd like you to take ahead. Right. So as I also mentioned in the morning, the one thing that we all have in common is that we all are strangers, strangers to lively habitats, practices, and so many different things. Yet we all are connected with one thing, that is art in this context. And that's what we are cherishing and trying to form different modalities of exchanges, because as we all are aware that whether willingly or unwillingly, the systems have made us vulnerable to the situations. And of course, being humans, we need to find solutions to different situations, as we always have been doing since we exist on the planet. So I take the pleasure to introduce the panel and what kind of discussion what we are going to have today. So for the conversation today in the second chapter of the series, Why I Do What I Do,
The Trigger, as part of the Untitled series, though we have a diverse mix of artists with both nascent and formed practices, they cumulatively reflect memory, banality, strangeness as common points in their works that make it a curious composition to learn about their thoughts and see their manifestations together. So the discussions with the artists would enumerate the modalities of their diverse practice through a lens of collective memories, context, and imagery. Triggers to the events and life experiences are occurrences. So today we go deeper in the 21st century. The reasons for disparities, disjunctions, derangements have surfaced significantly and equally ignored. The panel today responds to these aspects, and we all shall learn what they do, why they do it, what triggers they resort to shape their visual practices. As a format, we would begin with one artist presenting nuances to their selected works, leading on to the round of dialogues with each panelist. So we will begin with Dinar Sultana, whose work is largely ingrained with the material choices she makes and has significantly evolved over the past few years. And it is perhaps interesting to look at that evolution also, as well as her current approaches towards the practice. So I request Dinar to begin with her presentation, and after that we will have a round of discussions with each artist and learn more about their practice. Thank you, Nikhil, and thank you so much, Priyashi Art Gallery and Priyashi and the team. I'm so happy to presenting myself here and giving me this opportunity to present. I'm Dinar Sultana, and now I'm working in Bangladesh. I have done my study from Shantiniketan and Baroda. So I have done my bachelor's and post graduation from India. And now I am working in Bangladesh. I already said. So today I will show more, I will talk less, and I'll show more images, because I believe that images for visual, as a visual artist, my image should talk and communicate. So I'm starting from my master's works, and I will show what I'm doing from last 2-3 years. So this is from my master's first year works, and I basically my practice is more about practice making things like color and paper. So all the things is more about making. So I'm and the technology, how I the technique, how I proceed. So this work I started from making color from different organic sources. So I use here some flower color. Next, and making color. Can you hear me? Yes, Dinar. Sorry, this is taking a little time to change the slide, but yeah, go on. So for me, color, for me, natural color from bark and flowers and leaves, it's like it's resemble as human blood or blood. So, and I wanted to see more bloods from different trees. So I made like around 50 shades of colors from many organic resources, from natural resources. Next. So this is how I make colors. Next. Yeah. So these all are natural pigments from different organic sources. Next. So and by those colors, I make painting like this, and this painting is quite big, like 10 feet, 5 feet. Next. And and sometimes after extracting color, I use the materials, the wastage materials as my part of work. Next. So after coming back to Bangladesh, I was thinking that
the political situation of Bangladesh, and not only Bangladesh, all over the world, this is same. And and the environment, we can see the reaction of our artificial uh, so after coming to Bangladesh, I started working with agricultural material. Like I used paddy pulp and clay from different places in Bangladesh, and and all the color of the clays are different colors. Next, so this is how I mix color. Next. Yeah, I was talking that I was working with agricultural materials and farming. I think it's the time to focus on this because everything is very inorganic. We are making our life more inorganic, and this and the result is this situation we are all are facing. So it's my surface is like field, and I am working on the field and how it looks. Please next. And all the papers, those are all papers, and I make from agricultural materials. I use natural fibers. All are natural fibers here, and the shapes and all, you can see different shapes. And this is, it's resemble, it's like the skin of a crocodile, and the skin is looks like a farmer skin. So I made this painting. Please read from your experience. Thank you. Next. And yeah, please wait. This work, this is all done from stone colors. I made colors from rubbing stones, and this is actually a landscape, or you can say this is from Buckminster Fuller, one architect and educator. I am very influenced by his works. So this shape, if you join this shape, it will become a globe. So and this is like a flat form of the globe landscape. So you can see there is lots of forms, and it could be like flags from, or any rituals from, or any religious from, or our letters, anything could be. And the I didn't think before that what form I will make on it. The all forms is come from by line and all. It's like I try to see forms on the shapes in this geometrical situation, and naturally I build up and I come up with forms. Please next. Yeah, this is kind of similar type of concept, the same map here, and the space of this map, you can see distributed similar size, like all the triangles is same. So this person, this Buckminster Fuller, now I'm following him and working on him. So you can see and he talks about the all limited natural resources, and how can we use the all natural resources for our lace with maximum. And the color, you can see all the color I made this in these triangles is from natural, like natural colors from clay and coal and graphite pencil, indigo, etc. And it's about the triangles are same here, and his concept that all land should be same, the hierarchy of land, countries and all, and the racism. So he talks about all these things. Please next. And the last work is made from papers, from paper pulp, and
And I try to demolish the language of a newspaper, and because I think what government and what our society wanted to show us, only what they wanted to show us, not always all the fact is not true. So I demolish the whole language, and I establish my visual language. And what I wanted to say, from the first to last in my work, you can see how I make paper and how I put my color, and all the accident and everything is on my hand. Whatever I am doing, it's happening from my hand. So please next. So this is like on the clay, on the cloth, and the cloth is like very soft. It's like our hair, or it's so the map is more like our body. And this art, if we treat our art as a body, so if we treat our art as a body, then we can take care of our art more. We will be more sensible to handle uh, our lifestyle and all. Please next. So how I work and how I take things, the working process, it's more about like labor. Next. Yeah, next. So this is my working uh, process. Next, please. Yeah, and this type of this is my very recent work. The last work what I have done is this, and it's quite big size, and like 6 feet. People, if the size is like a standard size of a human, can come and see the all details and all. And this work name is, maybe this is a flag. And you can see the shape, how it's made, the technique, the color, and the form. In our most of our flag, we can see the design, or the shape or form is coming from nature. It symbolize nature, but the policy and all, it's not actually for all. So they're making dividation border and all, talking about good things, but but actually there is no any utopian or any good relationship. Because in this pandemic size, we have seen that every country is very different from another country, and their policy is very different, and everyone is, it's so fragile. There is no unity. But we talk about unity, we sit with our flag for unity and all, but the actual scene we have seen already. So this is this recent work is more about political situation of around us. So yeah, maybe I have done. Thank you. And if you have any questions, please ask me after this after everyone's presentation, or maybe you can write. Yes. Thank you so much. Thank you, Nikhil, and Yes. thank you, Press Art Gallery. Yeah, For Dinar, a wonderful insight you presented to the choice of images gave a good insight to your process. I'm even more curious about the material you choose. So how do you go about it, and where do you source them from? To begin with, if you can respond to this, like there is a husk, different types of husk you are using, different you are, as you mentioned, it's a very poetic understanding of calling the pigments or the juice of plants as blood of organic material. So equating with human blood and responding it, and then sourcing the pigments and making the chart out of it. So it's very interesting to look throughout the entire process. So can you give us more information about how do you source this material, and how do you present them together? Yeah, thank you, Nikhil.
So, my first, you have seen already that all the colors and uh, all the materials for paper from first to last. You can see that I use natural pigments, and it's the reason is what is uh, what is my subject is very natural, and I think natural thing touches us very much, and that's why maybe I started from natural color and natural pigments or natural mediums. Maybe I have started from that sensibility, and Okay. talks about my subject Right. subject matter and all. Right, right. So now this also, like, since you are sourcing the pigments from minerals and also natural materials, so is there an extension also on textiles you would be doing or you have been doing? Yeah, Nikhil, it's a very lovely question. I love it. So the surface is always very important for me, and in every work you can see, I used textile in background, and maybe sometimes top of it, and it's like our second skin. Hmm. Hmm. And I don't I actually, if I ask me directly that what is the reason behind it, I cannot answer, but there is always something inside me to use cloth for my work. Maybe we use all the time. I don't know actually, but I'm very comfortable, and I always find very sensible to use this material. Okay, okay. So, how does Buckminster Fuller's concepts come into your work? Like the reference to the map he produced in a geometrical fashion, and then in your context, you are utilizing mineral pigments which you are using, and then making marks on the representation map of the world. So how do you refer to this? Like, how does the ideas of Fuller come into your work? Yeah, these days I after done my study, I was searching for inspiration. Mm-hmm. So and I was like I was thinking that yeah, all the work is very my work is very poetic, and it's all talks about my feelings, but before I say that, after coming back to Bangladesh, I have seen, so I have go through a political situation. I mean, I have to. Before, my life was very comfortable, but after coming here, I have to survive, and the social structure and everything. Actually, I was into it, so that's why. Maybe that's why. And that time, I find Buckminster Fuller, his work and his ideology. It's very similar to me, and I believe in him a lot. And then I started reading about him and his architecture and his design, his writing. He have wrote many books, and I didn't read all of them, but most of them I actually those days I read. I try to I love to read him, and I do I have seen many videos from YouTube and all. So he is actually my study point. I inspired from him to like, sorry, to work. Right, Thank you. right. Yeah, thanks a lot for that insight, Dinar. Uh, with the kind of manual labor which is involved in making the works, जिस तरह से आप अपने मटेरियल को चूज करते हो और उसमें जो एक मैनुअल टच जो है एक साथ लाना, और उसमें थंब इम्प्रेशंस हो या फिर मैनुअल काम करने के जो इम्प्रेशंस उसमें मेमोरी जैसे रह जाते हैं, सो वैसे ही मेमोरीज हमें हार्दिक चावड़ा के काम में नजर आते हैं। हार्दिक हमारे यहाँ पे एक और पैनलिस्ट हैं जिनका ज़्यादातर काम क्ले में होता है, और एक पर्टिकुलर काम हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ उनका क्ले में जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं उसके बखूबी इस्तेमाल वो कर रहे हैं।
सो मैं हार्दिक से पूछना चाहूँगा कि इस क्ले माध्यम का इस्तेमाल करना, और स्पेसिफिकली जनरली हम पॉटरी की तरफ से देखते हैं, एक पूरा आकार 3 डायमेंशनल आकार की तरह देखते हैं। यहाँ पे आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे एक टेक्सटाइल की तरह या कपड़ा जो बिछाया हुआ है, ऐसा कोई पुराना कपड़ा ऐसा नीचे गिरा हुआ है, इस तरह से आप उसका इस्तेमाल करते हो। सो उस प्रोसेस के बारे में आप क्या बताएंगे हार्दिक? Hello Nikhil, Hi. thank you for this opportunity for Preshri and also Preshri Gallery. Actually मैं पहले नेचुरल मीडियम में काम करता था और उसी तरह से पूरा मेरा एक कनेक्शन क्ले के साथ भी हुआ था। जो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली आप क्ले के बारे में बात कर रहे हो, सो क्ले को मैंने हैंडल जैसे नॉर्मली व्हील पे ट्राई किया, लेकिन जैसे मैं पेंटिंग बैकग्राउंड से हूँ तो डायरेक्ट सोचा था कि क्ले को एज ए मैं सरफेस ट्रीट करता हूँ, ना कि ऐसे पूरा फॉर्म बेस्ड ट्रीट करता हूँ। सो सरफेस सबसे पहले मैं अपनी एज ए सरफेस बनाता हूँ और उसमें भी जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ का एटमोस्फेयर है वो भी बहुत डिपेंड रहता है। एक्चुअली ये जो वर्क आप स्लाइड में देख रहे हो वो काम सोचा था, वैसे इंटेंशनली किया नहीं था। एक्चुअली ये थानगढ़ में काम प्रोड्यूस किया हुआ था। मुझे चाहिए थी बहुत फ्लैट नेट एंड क्लीन सरफेस, लेकिन वहाँ की क्ले में वो क्वालिटी नहीं थी। जैसे मैं काम करना स्टार्ट करा वो ऑटोमेटिकली क्रैक हो रहा थोड़े टाइम के बाद। सो 2 दिन काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि अभी मैं जिस तरह से क्ले को कंट्रोल करना चाहता हूँ उस तरह से होगा ही नहीं। सो बेटर है कि मैं क्ले को समझूं फिर उसको मैं रिस्पॉन्स करूँ। सो यहाँ पे क्ले भी एक थोड़ा सा अपना पार्ट दिखाती है क्रिएटिविटी में। सो देन अगेन द प्रोसेस बेसिक मेरा वर्क स्टार्ट हुआ था पूरा एब्स्ट्रैक्शन बेस से, और यहाँ पे मेनली मैंने ट्राई किया था एब्स्ट्रैक्शन क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है। जैसे थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा मटेरियल मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, इन बिटवीन कहीं पे एक जो फॉर्म्स मेरा डेवलप होता है वो डायरेक्ट एक मेमोरी से क्रिएट होता है। सो मेमोरी को मैं एज अ फॉर्म एज अ मटेरियल कैसे दिखा सकता हूँ। सो जैसे मैं एक क्ले में काम करने लग गया था, हमें क्रैक आने लगे। सो डायरेक्टली मुझे वो रिमाइंड है कि जब मैं धोलावीरा और जैसे पुरानी साइट्स पे लोथल जैसे साइट्स पे गया था, सो एक क्रैक भी है सरफेस में, थोड़ा सा आर्किटेक्चर एलिमेंट भी है, लेकिन वो क्लियर नहीं है आर्किटेक्चर एलिमेंट क्या था। जैसे सिर्फ ब्रिक्स दिखाई दे रही है, वो क्या था, बाथरूम का वॉल था या कोई रूम का वॉल था, क्या था एग्जैक्टली वो पता नहीं था। सो फिर जो एक दूसरा एलिमेंट था जो स्ट्रक्चर, वो धीरे से काम में मैंने सोचा कि शायद ये इंट्रोड्यूस करूँ तो काम का थोड़ा रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाए। सो ये पूरी एक मटेरियल की प्रोसेस के हिसाब से काम में हल्के से सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन मेन मेरा काम मटेरियल के साथ एंगेजमेंट का है। मैं ट्राई करता हूँ उसको जितना हो सके समझने की, फिर उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। जिस तरह से क्ले का खुद का एक प्लास्टिसिटी है और उसका जिस आकार में आप छोड़ देते हो वहीं पे रहने का भी एक आदत है। तो एक तो उसको जानबूझकर एक आकार भी दिया जा सकता है और जैसे हमें चाहिए, या फिर एक आकार देके छोड़ दिया तो वहीं पे वो रह भी जाता है। यस यस। सो उसको एक क्ले का अपना ही एक क्वालिटी है जो यहाँ पे आपके जो फ्लैट काम है, यहाँ पे जिस तरह से आपने लोथल का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर को प्लान किया हुआ है या किस तरह से आप ये आकार, क्योंकि काफी ऑर्गेनिक तरीके से नजर आता है। और हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं कि लोथल काफी एक प्लान्ड हमें सिविलाइजेशन का रेफरेंस मिलता है। सो इस काम के प्रोसेस में किस तरह से आपने प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है या फिर ऑर्गेनिकली आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे बताओगे आप? एक्चुअली ये काम स्टार्ट किया था, मैंने बोला एक पूरा डायमेंशन के साथ पूरा स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे पास डिजाइन रेडी थी जो पेपर पे मैं बना था। उसके बाद मटेरियल पे आता तब कुछ रिस्पॉन्स मटेरियल भी देते हैं। तो यहाँ पे पहले पूरा काम पर्टिकुलरली जैसे फिक्स्ड वॉल बना था, जैसे बहुत आर्टिफिशियली फिनिशिंग वाला, लेकिन फिर काम को देखने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल की बहुत ये मटेरियल की पूरी रफ क्वालिटी है, तो उस पर मैं पूरा आर्टिफिशियल देखना चाहता हूँ तो बेटर नहीं रहेगा। सो उस तरह से पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे जो डेवलप किया हुआ था एक्चुअली साइट पे, वो तो पूरा प्लानिंग बेस्ड होगा, लेकिन जैसे मैं देख रहा था मुझे वो प्लानिंग समझ में नहीं रहा था अभी कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उस तरह से यहाँ पे भी मैंने जैसे प्लानिंग करना स्टार्ट किया, कहीं पे कंपोजिशन वाइज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे चलो कोई ह्यूज बात जैसा कुछ स्ट्रक्चर था तो वहाँ पे वो बना देता। सो इस तरह से जैसे काम हो रहा है, कंपोजिशन को सेट करते हुए मैं स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ। ओके
जी, जिस जिस तरह से हम हार्दिक के मीडियम में जो इम्प्रेशंस देखते हैं और उस इम्प्रेशन का जो खुद को एक क्वालिटी क्ले का एक पर्टिकुलर क्वालिटी रिटेन करने का एक कंसेप्ट हम उसके कामों में देखते हैं, वैसे ही राजा के काम में भी हमें कुछ ऐसे ही तरीके के रेफरेंसेस मिलते हैं। सो और जहाँ पे पर्टिकुलरली प्रिंट मेकिंग का जो मटेरियल का प्रोसेस है, और जबकि हार्दिक के काम में एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन है, हैंडमेड क्वालिटी है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी हम राजा के काम में एक पेंटरली अप्रोच हम देखते हैं, और काफ़ी बड़े साइज में ये वुडकट बनाते हैं, और वुडकट ट्रेडिशन जहाँ से वो आते हैं, जिस स्कूलिंग में से वो आते हैं, प्रिंट मेकिंग का काफ़ी उनके ओवरऑल लर्निंग में असर है, और उस लर्निंग को सिर्फ वो प्रिंट या लिमिट लेवल तक न रखे हुए वो उसको आगे बढ़ाते हैं। जबकि हम अभी देख सकते हैं कि इतने सारे पिगमेंट्स का इम्प्रेशंस हमें नजर आते हैं, शेड्स नजर आते हैं, जनरली ये हमें प्रिंट्स में देखने नहीं मिलते हैं। सो ऑफ कोर्स ये राजा का एक लगन जिसे हम देख सकते हैं कि वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं, और एक अजीब का किस्म का एक अब्सर्डिटी भी उनके काम में नजर आता है, जहाँ पे इतने सारे नंगे अधनंगे बच्चे खेल रहे हैं और बीच में ही एक लड़की किनारे पे खड़े होके देख रही है, उसको पार्टिसिपेट करना भी है, नहीं भी कर सकती है, ऐसे एक अचरज है, अचंबा है, ऐसे अलग अलग तरीके से कंफ्यूजन्स हमें देखने मिल सकते हैं। और दूर पानी में कुछ नाव हैं। सो ओवरऑल ये जो एक सामान्य तौर पे दिखने वाला एक नज़ारा है, उसमें इस प्रिंट मेकिंग के माध्यम से उन्होंने जो वेरिएशंस लाए हैं, एक पेंटरली क्वालिटी लाया है। तो मैं राजा से इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि ये पेंटरलीनेस आप क्यों लाते हैं और उसको प्रिंट तक ही क्यों नहीं छोड़ते? तो वो आगे के जो ऑफ कोर्स ये मोनो या फिर एक या दो प्रिंट्स निकलते होंगे। सो राजा आप क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो निखिल एंड प्रियश्री मैडम, थैंक यू। मुझे एक्चुअली प्रिंट को लेके एक्चुअली मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रिंट में सभी एक जैसे ही मतलब काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे काम में ऐसा होता था कि चैलेंजेस बहुत लेने का मन होता था कि एक प्रिंट में पेंटरली क्वालिटी लाया जा सकता है क्या, इस तरह का कुछ माइंड में चलता था। तो उसको हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको मैं छोटे छोटे ब्लॉक में उसको प्रैक्टिस करता था, देन उसको इम्प्लीमेंट करता था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। छोटे वुडकट में अगर पॉसिबल है तो उसी को सीधा मैंने बड़े वुडकट्स में एक बार करके देखते हैं। जैसे डिफरेंट अलग अलग, जैसे बड़े वुडकट में ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि हमें छोटे छोटे रोलर्स के यूज करके अलग अलग जो स्पेसेस है वहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हो वुड के ऊपर, देन ओवरऑल एक लेयर्स भी फिल कर सकते हैं। इतने सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो उसको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया कि जितना हो सके उतने मल्टी कलर्स में हाउ कैन इट पॉसिबल। तो मैंने करने का कोशिश किया, और मेरे काम एक प्रोसेस बेस ही है। जैसे मैं एक स्केच को सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरे मेमोरी या स्केचेस या इमोशनल ह्यूमन फीलिंग्स, ये सब में से मेरे काम का जो भी इमेजेस आते हैं वो फिर मैं स्केचेस बनाता हूँ उसके, और उसमें अपने आप नहीं पता, अपने आप एक स्पेस बनता है जहाँ पे, जैसे आपने बात किया इस गर्ल की कि वो वहाँ पे खड़ी है, सोच रही है कि आज जाना है, पानी में नहीं जाना है, जो भी जिस तरह से आप बोले बिल्कुल सही है। मैं एक वो स्पेस अपने आप मतलब प्रोसेस में ही क्रिएट होता है, और कलर के साथ जो एक प्ले होता है कि जैसे हम एक लेयर बाय लेयर होता है एक्चुअली ये जो भी प्रिंट मेकिंग होता है, तो वो लेयर बाय लेयर में ये चीजें बहुत सरप्राइजिंग होती है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर में हम जाते हैं तो इमेज एब्स्ट्रैक्ट दिखता है, मतलब इनकम्प्लीट दिखता है। कभी कभी कुछ कुछ चीजें मतलब
हमें उल्टा प्रोत्साहित करेगा कि तुम्हें इसको बाहर निकलना चाहिए, इसको अंदर रखना चाहिए, ना तो ये कलर को रखना चाहिए, ये कलर को नहीं रखना चाहिए। मतलब इमेज के साथ जो इंटरेक्शन होता है हमारा, इमेज के साथ कंटिन्यूसली हम लगे हुए होते हैं, जिसके कारण इमेज के साथ हम कंप्लीटली अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इमेज और हम दोस्त की तरह बात कर रहे हैं और प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। कंप्लीटली प्रोसेसिंग ऐसा मतलब चलता है पूरा जर्नी। इसको 15 डेज या 20 डेज एक बड़े उठकट करने के लिए जो ड्यूरेशन है वो हमेशा इतना टाइम तो लेता है। तो कंटिन्यूसली आई एम कनेक्टेड विद दैट ओनली, क्योंकि उसको सूखने के लिए 3 डेज लगेंगे, फिर देन वो उसके ऊपर उठकट करना पड़ेगा, देन लेयर्स आर कम्प्लीटली डन, फिर देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है मेरा प्रिंट, कौन सा कलर इसके ऊपर सूट होगा नहीं होगा। तो ये बहुत सारे प्रोसेस जो है मेंटली एंड फिजिकली, मटेरियल माइंड के साथ और फिजिकली बहुत सारे चीज इंक्लूड होते हैं, जो कि नॉट अ सिंगल इमेज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इमोशंस, फीलिंग्स एंड so many things I don't know actually. राजा, आपके बातों से ही समझ में आता है कि आप इस प्रोसेस में कितना मजा लेते हो। yes sir, yes sir. या तो और वो मजा आपके ओवरऑल काम में भी नजर आता है। yes sir. Meher, can we see next images of Raja? yes sir. Right. Yeah, just scroll through. yes sir. तो इस इमेज में मैंने मतलब मेरे माइंड से ये ऑलमोस्ट जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे एज अ गर्ल मैंने देख सकते हैं, आप देख लीजिए। जी आप बोलिए, हम देखते देखते बात कर सकते हैं। जी यस सर, जो मैंने इमेज में जो दिखाया था, जैसे गर्ल आसमान में उड़ रही है, सो एक लड़का देख रहा है और एक उड़ रहा है, जो भी सिचुएशंस आर क्रिएटेड। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की, जैसे हमारे माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, हम एक्चुअली कुछ लेके कुछ कैरी करके लाइफ में कहीं एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में एक थॉट आया और हमें बहा के लेके गया। लाइक ऐसे जो भी सिचुएशन मेरे माइंड में बनते रहता, तो उसको इमेजिनेटिंग लेवल में, जैसे जो भी ओवरलैपिंग बहुत सारे टेक्निक्स का यूज मैं करता हूँ। जैसे एक ही प्रिंट के ऊपर मल्टीपल वुड्स का प्रिंट करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना, ये सब करके जो मेरा इमोशन है, फीलिंग है, उसको लाने की कोशिश करता रहता हूँ एक्चुअली। राइट। तो वुडकट की तरफ आपका लगाव क्यों है? एक्चुअली मतलब मैंने जब इसके साथ जब काम किया, तो काम करते करते ऐसा लगा कि इस मीडियम में मैं बहुत कुछ मतलब ऐसा लगा कि इस मीडियम में बहुत कुछ अभी भी बचा है जो आगे जाके कर सकता हूँ, जो अभी रुका हुआ है यहाँ पे, मैं उसको शायद आगे बढ़ा सकता हूँ। राइट। आपके तो उसको लेके मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। जी जी। आपका ओवरऑल इंक्स और बेसिकली कलर्स जो आप प्रिंट के लिए यूज कर रहे हो, उसका देखने के बाद जो कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर होके गए हैं, हाल ही में उनका देहांत हुआ, तो उनका काम का कुछ हद तक याद आता है, क्योंकि इंटाग्लियो प्रोसेस में वो जिस तरह से विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते थे, तो एक हिंट नजर आता है आपके काम में कि मल्टीपल कलर्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी मजा आता है देखने में। जिस तरीके से हम पिगमेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, कॉमन प्लेस मटेरियल है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, या कन्वेंशनली प्रिंट में 1 2 3 4 ऐसे या लिमिटेड कलर्स का इस्तेमाल होता है। राजा के काम में हम देखते हैं कि मल्टीपल कलर्स एक साथ आ रहे हैं। ये प्रिंट मीडियम का एक लिमिटेशन जो है उसको भी वो पार कर रहे हैं, और एक तरह से एक नया आयाम उसको दे रहे हैं। हालांकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम रितेश हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, रितेश राजपूत, तो उनके काम में ये मटेरियल का जो चॉइस है वो काफी अलग तरीके से देखने मिलता है। कि जब हम इस पर्टिकुलर काम देखते हैं हमारे सामने जो अभी स्क्रीन पे है, पहली बार जब मैंने देखा, अरे ये क्या है, ये तो कुछ अजीब काम नजर आ रहा है,
प्लास्टिक में लपेटे हुए कपड़े क्यों रखे हुए हैं, तो ये कैसे आर्ट हो गया है। तो ऐसे काफी सारे सवाल मन में आ जाते हैं। बट जब आप ध्यान से देखते हो कि ये कपड़े नहीं रखे हुए हैं, बट ये पेंटेड मार्बल स्कल्पचर्स हैं, तो तब जाके काफी एक अचरज वाली बात आ जाती है कि ये पेंटरली क्वालिटी और जो मटेरियल को ढकना जो है, मटेरियल का इल्यूजन जो क्रिएट करना है, और कॉमन प्लेस जो चौराहे पे कहीं पे रास्ते पे बिकने वाले जो सामान है, वो सारे सामान हम देखते हैं। मेहर, कैन यू प्लीज शो द फर्स्ट इमेज ऑफ दिस स्लाइड। हाँ, तो ये जो ठेला लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो हम रोजमर्रा के आते जाते बाजार में कहीं आते जाते हुए देखते हैं, और ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये तो देखा हुआ है, तो इसमें क्या नई बात है, इसमें आर्ट कहने वाली कौन सी बात है। बट जब समझ में आता है कि ये वास्तव में कपड़े नहीं है, बट ये मार्बल में बनी हुई चीजें हैं, जबकि हम उनके जूते या चप्पल भी आगे देखते हैं, तो काफी एक्साइटिंग लगता है कि ये जो प्रोसेस है कि एक मटेरियल को दूसरा मटेरियल का जामा पहनाना। तो रितेश, आप इस प्रोसेस के बारे में क्या बताएंगे? हेलो। यस रितेश। हाँ, थैंक यू सो मच निखिल भैया, प्रिया से मैम, जो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये प्रोसेस में ऐसा है कि एक जो स्टोन कार्विंग बहुत पसंद है। रितेश, हाँ, आप माइक हाथ में पकड़ लीजिए तो माउथ पीस जो है वो आवाज आपका सही आएगा। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं बेसिकली ज्यादातर स्टोन में ही काम करता हूँ, तो मेरे खुद के साथ एक चैलेंज था कि मैं अब इस कंटेम्प्ररी वे में, अभी तक मैंने देखा कि स्टोन में पॉलिश, फिनिशिंग, टेक्सचर, वो एक स्टोन का अपना एक ट्रेडिशनल विजुअल है, तो मुझे उसको ब्रेक करना है। तो उसके बाद मैंने अपना एक क्यूरियोसिटी था कि एक मटेरियल को, मैं हमेशा रियलिस्टिक काम करता हूँ, तो उसको मैं कंटेम्प्ररी वे में कैसे प्रेजेंट करूँ। और मेरे काम का थॉट है कि मैं ऐसे मेरे आसपास में जो डेली रूटीन में जो चीज मैं देखता रहता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो उसको अपने काम में किस तरह इन्वॉल्व करूँ, मैं प्रेजेंट करूँ, ठीक है। ताकि मेरा सोच ये था कि एक आर्ट ना एक यूनिवर्सल थॉट होना चाहिए, ना कि मेरा पर्सनली, ठीक है। तो ये आर्ट में कॉमन पब्लिक तक पहुंचा सकूं। तो मेरा पहला थॉट था कि मैं एक आर्ट करूं तो कॉमन पब्लिक तक भी उससे समझ आए। तो मेरा हमेशा रहता था कि एक क्यूरियोसिटी, एक इल्यूजन। तो ये काम में ऐसा ही था कि मैंने कार्विंग करके उसको, एक मटेरियल को अपना ट्रेडिशनल विजुअल पूरा चेंज कर दिया। मेरे खुद के साथ एक चैलेंज था कि मैं किस तरह इसको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो एक स्टोन है जो एक बहुत हार्ड मटेरियल है, बहुत हेवी मटेरियल है, उसको इतना हद तक ले जाना, मतलब एक टेक्सचर, एक क्लोथ, एक सॉफ्टनेस, एक लाइट वेट, उसको इतना विजुअल तक ले जाना, वो मेरे लिए भी चैलेंज था। और उसके बाद सेकंड मेरा रहता है हाउ टू प्रेजेंट। मैं उसमें सबसे ज्यादा सोचता हूँ, ठीक है, वो चलो मैंने कर तो लिया, ठीक है, वो हो भी गया, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट, उसके ऊपर मैं बहुत सर्च करता हूँ, चीजें ढूंढता हूँ, देखता हूँ, फिर जाके कुछ मेरे सीनियर से कुछ बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तब जाके मैं कुछ उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारे काम में इसी तरह मेरे प्रोसेस है। जैसे मैंने मेटल में भी कुछ काम किए, उसको भी मैंने, मेटल का एक अपना थॉट है, एक विजुअल है। तो हमेशा हम लोग मटेरियल को जज कर लेते हैं उसके विजुअल से, तो मैंने वो मटेरियल का विजुअली पूरा चेंज कर दिया था, ताकि लोग समझ ही ना पाए कि ये एक्चुअली है क्या। और आपने बोला ऐसा ही मेरे साथ भी बहुत हो चुका कि लोग काम देखने के बाद ऐसे कमेंट किए कि ये क्या आर्ट के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी बाजार से उठा के डायरेक्ट रख दिया, मार्केट में जूते रख दिए, चप्पल रख दिया। लेकिन एट द एंड उन्हें कहीं से पता लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली रियल नहीं है, तो वो लोग फिर से आते हैं, फिर वो टच करते हैं, तब वो शॉकिंग हो जाते हैं कि एक्चुअली हम लोग ये सोच रहे थे, फिर आके वो लोग बोल रहे हैं भाई ये तूने कैसे कर लिया।
तो ये सब चीज भी मेरे साथ हो चुका है जी। राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब मेहर, कैन वी सी द शूज डिस्प्ले इन हिज वर्क? या तो जिस तरह से आप इसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं, तो काफी कॉमन प्लेस अभी राह चलते हाँ, हुए हाँ जी, नजर आने वाले चीजों का जो डिस्प्ले है, ऑफ हाँ कोर्स जी। हम बाजार में भी चप्पलों को ऐसे ही देखते हैं। तो कुछ और बता सकते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्सेस किस तरह से रहा है? ऑफ अभी कोर्स कंफ्यूजन तो रहता है। ये अभी फिलहाल मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि हम मतलब न्यूज में देख रहा हूँ कि अभी डिजिटल इंडिया के चक्कर में हम लोग ये छोटे जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल स्ट्रीट मार्केट थे वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं। जी। और जो ये स्ट्रीट मार्केट जो थे का पूरा बेस एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, एक एक थैले के ऊपर 4 लोगों का घर चल रहा था। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें मॉल्स बनाने हैं, शोरूम बनाने, लेकिन हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को सोच ही नहीं रहे कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते ना। जी। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि डिजिटल के चक्कर में मिडिल और लोअर क्लास पब्लिक पीपल के बारे में भी सोचना जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक लोअर क्लास मिडिल से बिलोंग करता हूँ। तो कई बार मैंने भी ऐसी स्ट्रीट मार्केट से बहुत सारी चीज परचेज की हुई है, हमारे खुद के लिए चप्पल, शूज, क्लोथ। तो आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज को मैं फेस कर रहा हूँ। राइट, राइट। यस, अभी दर्शकों से आई विल आस्क द ऑडियंस इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क while we continue our discussion and questions with the artist. You can type in the chat box to ask your questions, and we shall begin the questions to address from the audience. दिनार, आपके लिए एक सवाल है कि जैसे आप बांग्लादेश से हैं और आपने एमएसयू में पढ़ाई की, तो वहाँ से आपने कुछ पेक्यूलरली, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली वहाँ से आपने अलग कुछ क्या सीखा? कल्चरली डिफरेंस में आपको क्या नजर आया? और जो आप रह रहे थे वहाँ पे, सो ये जो जनाब है, वी सॉ योर वर्क्स इन मिस्टर प्रणॉयज एग्जीबिशन टाइटल आर्काइवल डायलॉग, सो आप कुछ उसके बारे में क्या बता सकते हैं दिनार? जी, थैंक यू निखिल। आप सुन सकते हो? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश, जब मैंने वेस्ट बंगाल में पढ़ती थी तब इतना कुछ चेंजेस मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सब लोग बंगाली बोलते थे। जब बड़ौदा में गई थी गुजरात, उधर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब लोग हिंदी में बात करते, तो तब मुझे इंडिया लगा। और बड़ौदा में सबके आर्ट प्रैक्टिस में काफी चेंजेस है इधर के और उधर के अंदर, और कल्चरली भी बहुत बहुत डिफरेंसेस है। बट मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब कुछ, ये जो सब कॉन्टिनेंट सेम थे एक टाइम, तो इधर की जो हिस्ट्री है, म्यूजियम पीस और सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बॉर्डर और ये सब जो है ये तो बहुत बहुत लेट हुआ, बट उसके पहले वो लैंड का जो हिस्ट्री है वो मैं बिना मतलब मैं वो देख सकती हूँ। बड़ौदा म्यूजियम मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने बहुत बार जा चुका और बहुत स्टडी करती थी। तो मुझे इंडिया बांग्लादेश के बारे में इतना डिफरेंस कुछ नहीं लगता है हिस्ट्री के वजह से, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होने के वजह से हम लोग तो काफी हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना पड़ा। तो मुझे ऐसा उस लैंड का या इस लैंड में कुछ फर्क नहीं आता है, क्योंकि इंडिया उधर तो एक है। तो जी। मुझे दिनार, थोड़ा मैं सवाल और ठीक करता हूँ यहाँ पे। सवाल ऐसा है कि आप जो एमएसयू में रही तब, जी हाँ, मैं इंग्लिश में ही पढ़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। Is there something in particular that you gained in your tenure at Fine Arts, MSU Faculty of Fine Arts? सॉरी, आप और एक बार रिपीट करेंगे? जी, so you are from Bangladesh and studied at MSU. Is there something in particular that you gained in your tenure at Fine Arts?
सो फैकल्टी में रहने से मतलब मेरे ख्याल से उनका सवाल आपके एकेडमिक ट्रेनिंग को भी लेकर होगा कि आप बांग्लादेश से हैं तो वहाँ का एकेडमिक्स और यहाँ का एकेडमिक्स में आपने क्या अलग सीखा, क्या बदलाव आपको महसूस हुआ, शायद इस तरह से उनका सवाल है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि बांग्लादेश के जो एकेडमिक सिस्टम है, मुझे इंडिया जाने का रीज़न ही ये था कि मुझे बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है कि जहाँ का सिलेबस और जहाँ का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा बेस्ट है। तो इसलिए मैंने इंडिया का जो 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 अच्छा कॉलेज मानते हैं वो 2 कॉलेज में मैंने ट्राई किया, मतलब ट्राई किया और चांस मिला था, तो मुझे उधर पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला और वो अपॉर्चुनिटी से मैंने बहुत सारा चीज सीखा। तो आई एम वेरी लकी। और मुझे चेंजेस ऐसा लगा कि बांग्लादेश में अभी जैसे गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज या ऐसे कुछ आर्ट कॉलेजेस है इंडिया का जो कोलकाता में है, और ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे अभी भी विक्टोरियन जो कॉलोनियल टाइम के जो आर्ट प्रैक्टिस है वैसे ही कुछ सिखाते हैं। और शांति निकेतन में मुझे तो बांग्लादेश में भी वो थोड़ा सिमिलर टाइप का प्रैक्टिस अभी भी है, बट एकेडमी में है। बट बांग्लादेश में अभी कॉन्टेम्प्रेरी जो आर्ट प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा एकदम कॉन्टेम्प्रेरी है। पूरा वर्ल्ड में जैसे करके काम हो रहा है इधर भी सेम, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बांग्लादेश का आर्टिस्ट लोग। तो मुझे एजुकेशन के बारे में मैं जब बोलूंगी तो मुझे बड़ौदा में उधर तो बहुत एक्सपेरिमेंटल काम करने के मुझे मौका मिला, जिसके वजह से मैंने मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर पाई। बट इधर पढ़ते तो शायद इनके इधर तो थोड़ा सा ऐसा सिलेबस कुछ कॉलेज में होते हैं, उनके अपना टेक्निक होते हैं बच्चे लोगों को पढ़ाने के, तो वो थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्टेड है इधर मुझे लगता है। बट बड़ौदा में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इवन शांति निकेतन में भी गाइडेंस काफ़ी है, बट मुझे बड़ौदा में टीचर्स और सबके पास से ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट मिला कि जो भी कर रही हो कि हाँ तुम आर्ट कभी सीखा नहीं सकते हैं, बट वो आर्ट का जो सिचुएशन, आर्ट का जो सराउंडिंग, आर्ट सीखने के जो सराउंडिंग क्रिएट कर देने के लिए वो सिचुएशन बड़ौदा में मुझे मिला। जी जी, आपके लिए एक और सवाल है, बट उससे पहले हम रितेश के लिए एक सवाल ले लेंगे यहाँ पे। सो रितेश, आपके लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर एक सवाल है कि आजकल 3D प्रिंटिंग बहुत माहौल में है, काफ़ी अलग अलग तरीके के 3D प्रिंटिंग हो रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हो रहा है और इंडस्ट्रियल यूज भी उसका काफ़ी हो रहा है, और आर्ट फील्ड में भी अलग अलग मटेरियल्स, ना ही सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं बट बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स में सिरेमिक्स का भी 3D प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गए हैं। सो जबकि ये प्रिंटिंग का प्रोसेस पॉसिबल है, तो आप रियलिस्टिक इमेज को बनाने का रेफरेंस आप किस तरह से देखते हैं एज अपोज टू प्रिंटिंग? पहले तो मैं ये प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता हूँ जी, और अपने काम को, अपने कार्विंग को एंजॉय करके काम ही करना मेरे लिए सबसे मेन है। तो वो हम लोग प्रिंटिंग में हमें वो इमेज तो मिल जाएगा, लेकिन हमें जो इंजॉयमेंट एक आर्टिस्ट जो अपने काम में एक इंजॉय करके कुछ करता है ना, वो शायद कहीं ना कहीं लेस हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक। दिनार, आपके लिए जो दूसरा सवाल है वो ऐसा है, द मटेरियल्स यू यूज आर ऑर्गेनिकली सोर्स्ड, I am assuming because of their decaying quality, your works might be temporary. How do you deal with this very decaying quality of the materials? And how does this quality contribute in your work and process? Yes. So, हाँ, तो इसका एक्सटेंशन ऐसा है कि ओवरऑल आप जो मटेरियल चूज कर रहे हो उसमें क्या आप कोई बाइंडर यूज करते हो या फिर उसका लाइफ एक्सटेंड करने के लिए किस तरह से कुछ ट्रीटमेंट करते हो, क्या करते हो? थैंक यू निखिल। एक्चुअली जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा एक ये जो इंस्पिरेशन था कि वो मुझे ये था कि मुझे नेचुरल पिगमेंट और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट करवा रहा था, उसका कलर और उसके तो सब कुछ, वो बहुत ऐसे सरप्राइजिंग था। तो एक फैंटेसी और सब कुछ मिला के मैंने काम करती गई, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि वो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या एंजॉय कर रही हूँ और मैं क्या बिलीव करती हूँ। तो मैंने जो बोलना चाहती थी वो मुझे ये नेचुरल मीडियम से ही ये लग रहा था कि ये वो उसको फुलफिल कर रहा था मटेरियल।
तो मटेरियल का भी एक खुद का एक लैंग्वेज है। तो जो वो लैंग्वेज और मैं जो बोलना चाहती हूँ, ये दो को अच्छे से बाइंड, मतलब अच्छे से प्रॉपर करते हैं। तो मैंने जब ये प्रिजर्वेशन के बारे में बात आते हैं कि आर्ट्स में ऐसा इज इट नेसेसरी कि आर्ट वर्क हमेशा लॉन्जिबल होना है, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो जो सरप्राइजिंग क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा परफॉर्मेंस आर्ट होते हैं, डिफरेंट ऐसे जो साइट स्पेसिफिक आर्ट होते हैं, तो ये सब के लिए इतना ज्यादा तो हम लोग सोच के नहीं करते हैं कि उसको प्रिजर्व करना है। तो ये जो आर्ट वर्ल्ड और व्हाइट क्यूब के अंदर से सोचना है कि ये हमेशा मैं बना रही हूँ और इसका कुछ रीजन है, तो वो रीजन क्या है वो पहले मुझे मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, और सरवाइव करना भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा मुझे जो प्लीज करते हैं, इंसान तो बहुत वे से सर्वाइव कर ही सकते हैं, बट मुझे ऐसा था कि मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा जो लैंग्वेज है उसको कैसे वो कैसे फुलफिल तो नहीं होता है, बट मैं कितना बोल सकती हूँ, कितना ट्राई कर सकती हूँ, मैंने उसमें फोकस किया कि और एक पर्पस भी मेरा था कि मैं जब नेचुरल लैंग्वेज से बात कर रही हूँ और मेरा लैंग्वेज में भी ये आना चाहिए कि मेरा काम भी टाइम के साथ डिके हो जाएगा और उसका भी एक ये जो नेचुरली वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी एक रियलाइजेशन है और एक ऐसा फिलोसफी है कि और ये क्वेश्चन करवाते हैं, ये जो फ्रेजिलिटी क्वालिटी है मेरे काम में, वो क्वेश्चन करवाते हैं कि उसका जो कलर काम में एक आप देख सकते हो कि बहुत ऐसे ब्राउनिश जो कलर है जो हम लोगों के या नेचर का जो एंडिंग कलर है, तो ये खुद को फिर क्वेश्चन करवाते हैं ना कि ये काम कितना टाइम रहेगा। तो मेरा काम उल्टा और एक सवाल व्यूअर के माइंड में मुझे देना था कि आप कितने टाइम एग्जिस्ट करोगे। तो ये एक मुझे ये सब ऐसे टाइप का जो सेंसिबिलिटी बढ़ाना है, इंसान खुद को क्वेश्चन करना है, वो सब में मैंने फोकस करती हूँ। इसलिए मैंने इतना ज्यादा टेक्निकल चीज के बारे में इतना नहीं फोकस करती हूँ। मेरा काम, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो जो मैं बिलीव करती हूँ मैं वो बोलती हूँ, और मेरा काम वो बोल सकते हैं और उसमें कुछ मैंने लिमिटेशंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आर्ट बहुत फ्री है, जैसे चाहे जो चाहे जो इस लाइक के फीलिंग को ऐसे फ्लो होना है कि कैसे करके वो फ्लो हो रहा है, नेचुरली उसको फ्लो होने दो। तो मैं भी आर्ट को बिलीव करती हूँ, शायद इसके आर्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने वो चीज को इतना फोकस नहीं किया कि टेक्निकली कितना ज्यादा उसका लॉन्जिबिलिटी होना ही पड़ेगा। राइट। काफी सटीक जवाब आपने इस प्रश्न को दिया है। काफी बार हम ये डिबेट हमेशा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आता रहता है कि काम का लाइफ कितना होना चाहिए, जबकि बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अभी आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे हो या अलग अलग माध्यमों से म्यूजियम पुराने आर्टवर्क्स को या मास्टर्स के आर्टवर्क्स को किस तरह से उसको समझो रहा है, कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो पोजीशन है कि हमारे लाइफ और आर्टवर्क का लाइफ ये निश्चित होना कितना जरूरी है, और ये एक अलग पर्सपेक्टिव है जो आपके काम में दिखता है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट। Before we go on to the next question, I request Meher to give me screen sharing option here. Yeah, sure. Just a second. Okay. Yeah. मैं यहाँ पे राजा का एक काम को शेयर करना चाहूँगा, जो काफी इंटरेस्टिंग काम है अपने आप में, और जिस तरह से ये काम है, आई होप सभी को स्क्रीन शेयर हो चुका है यहाँ पे। Yes, we can see it. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी लोग ट्रैवल करते थे, और ट्रैवलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, अनजान लोगों से हमारी मुलाकात होती है,
खास करके जो नाइट ट्रैवल्स होते हैं और जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल्स होते हैं। सो वैसे ही एक कॉमन प्लेस, एक विजन, एक साइट है हमारे यहाँ पे सामने, जो राजा के वुडकट प्रिंट में से नजर आता है। बट उसमें से खास एक बात है, ऑफ कोर्स ये एक तरह से एक लेडीज बोगी जैसे लग रहा है। राजा ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे पाएंगे यहाँ पे। बट जो इंट्रीगिंग बात है इसमें, जो खास बात है, वो ऐसा है कि सबके जो आंखें हैं, एक ना कहीं तो अंधेरे में भी दिखने वाले जो आंखें हैं, जो एक विजिलेंस की बात होती है या फिर ताड़ने की बात होती है, वो दर्शाने वाले चिन्ह यहाँ पे हैं। तो राजा, इस काम के बारे में कुछ और हमें हमसे बात कीजिए जरूर। हाँ, यस सर जी। इस काम में एक्चुअली ऐसा है कि एक सिचुएशन था, लेकिन उसको मैं ऐसे कहूँगा कि सबको ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे सामने एक्टिंग करते रहते हैं जी। लाइक मतलब अपने जैसे घर है, घर के बगल में जो भी नेबर्स है, जो भी जानते, सब कुछ जानते, लेकिन मतलब वो एक्टिंग करते रहते हैं आपके सामने कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं, एवरीथिंग वो देख रहे हैं। वैसे ही एक सिचुएशन मेरे ट्रेन में मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मतलब मेरा एक ऐसे मैटर आया था कि जहाँ पे मैं एक लड़की से शादी करने वाला था, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए। वो चीज़ जानते थे, वो जानबूझ के वो लड़की को मेरे पास बैठाए, एंड देन ये सब सिचुएशंस हुआ। तो सब जानते हुए बहुत सारा चीज हो रहा, तो मैं उसको एक दूसरे तरीके से भी मैं एक इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया कि यहाँ पे जो भी हो रहा है सब कुछ वो जानते हैं एक्चुअली। जी जी, थैंक यू राजा। थैंक यू। यस, काफी खास काम लगा मुझे, क्योंकि स्पेशली इसमें जो वुडकट का जो तरीका है, जो ग्रेन्स का इस्तेमाल जो आपने किया है, स्किल वाइज और कंसेप्ट वाइज दोनों ही बहुत ही इंट्रीगिंग है यहाँ पे। यस, आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग नाउ एंड अगला सवाल है रितेश दिनार के लिए। दिनार, as you mentioned before that you find comfort in using organic materials in your artwork, how particularly you ended up in establishing your style, when and how? अच्छा, मुझे लगता है कि क्योंकि एंड क्या होगा ये पता नहीं चलता है ना, कि कैसे चेंजेस आएगा। शायद मैंने पहले बहुत ज्यादा जो बार्क और लीव्स और ये सब के कलर से मैंने बहुत सारा काम किया। ऑटोमेटिकली बांग्लादेश आने के बाद मैंने ग्राफाइट, चारकोल और बहुत सारा लैंड का क्ले कलर, बहुत सारा टाइप का कलर का क्ले, फिर स्टोन कलर यूज करना, ये सब मैंने किया। तो मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट काम या अगले 2 साल में मैंने कैसा टाइप का काम करूंगी। वो डिपेंड करेगा मैंने कैसे करके मेरे सराउंडिंग के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, और कौन सा मीडियम। एक्चुअल में मीडियम मुझे मेरा लैंग्वेज को हेल्प करने के लिए मैंने यूज करती हूँ, और मेरा काम के स्टाइल को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं। तो जो मीडियम मेरे लिए मेरे काम को ज्यादा एक्सप्रेस करे, वो मीडियम मैंने हमेशा चूज किया है। तो मुझे पता नहीं कि एंड अप कैसे होगा, कैसे टाइप का कलर से या और कौन सा मीडियम से, या वो पेंटिंग ही होना है ऐसा नहीं है। मैंने अभी कुछ ऐसे स्पेसशिप एक बना रही हूँ जो स्कल्पचर है, तो वो आइडिया लेके कुछ मटेरियल थोड़ा अलग और भी सोच रही हूँ कि और भी क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बैम्बू और ये सब अलग अलग वैसे क्राफ्ट कैसे यूज करके क्राफ्ट को। तो मुझे पता नहीं काम कैसे करके एंड हो जाएगा। इट्स लाइक ए जर्नी। तो देखते हैं कि कैसे करके एक से एक शिफ्ट होते हैं मीडियम वाइज। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सानिका का यहाँ पे एक सवाल है रितेश के लिए। रितेश, सानिका का सवाल ऐसा है कि आपके सारे काम जो है वो सॉलिड मटेरियल में बन रहे हैं, मीडियम जैसे मार्बल जैसे पत्थर जैसे मीडियम में बन रहे हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड नहीं है और जल्दी ही टूटने वाला या फिर खराब होने वाला वैसे उस टाइप का काम नहीं है। और बट आपका जो सब्जेक्ट है
वो टेम्पररी स्वरूप का है। जैसे कि लोग रास्ते पे लाके सामान बेच रहे हैं, जो उनके रोजी रोटी का बात है, रोजमर्रा की चीजें हैं। सो उन आप जिस तरह से मीडियम का जो चुनाव कर रहे हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन जो हो रहा है, तो वो कहाँ पे होना ज्यादा सही लगता है आपको? सो मेरे ख्याल से सानिका, इफ आई एम आस्किंग द राइट क्वेश्चन, you can also start your mic and ask if it is if you want to add on to it. तो गैलरी में दिखाना चाहिए, या फिर आपने जो जो फोटो में हमने देखा कि रास्ते पे उसने आपने डिस्प्ले किया हुआ है, तो आपको डिस्प्ले का जो जगह है उसका चुनाव आप कैसे करते हैं? मुझे तो ज्यादातर फोकस था मेरा गैलरी में करना, लेकिन उस टाइम पे फाइनल ईयर के डिस्प्ले में गैलरी मिलना पॉसिबल नहीं था फैकल्टी में। तो इसीलिए मैंने फैकल्टी का एक ऐसा स्ट्रीट पार्ट चुना जहाँ से लोग कैंटीन आते जाते रहते थे। तो उसी तरह पर मैंने फिर वो मेरा काम प्रेजेंट किया, लेकिन मेरा फोकस तो था गैलरी, लेकिन नहीं मिल पाया मुझे उस टाइम पर डिस्प्ले करने के लिए। जी, yes, right. I think this brings us to the conclusion of the session, and there have been a lot many questions from the audience as well as interaction. अगर आर्टिस्ट में से किसी को कुछ और सवाल करने हैं एक दूसरे से, या फिर कुछ आपको और कमेंट करना है, तो जरूर आपकी बात रखिए। जी, यहाँ पे एक सवाल ऐसा है कि क्या ये पहला जो हमारा सेशन हुआ उसका वीडियो हमें कहाँ देखने मिल सकता है? I think Meher can respond to that. Yeah, so we are actually trying to put it out as soon as possible. Once we have the recording of this session, we'll put it out on Facebook for everyone, and you can also like email us if you want like a private recording. We can also send that across. तो ये recording आ जाएगा Facebook पे डाल देंगे हम। एक बार ये सेशन खत्म होगा फिर उसको सेव करके हम Facebook पे डाल देंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू। ऑडियंस में से कुछ और सवाल है तो जरूर पूछिए। शर्मिला गुप्ता जी का कहना है कि वेरी इनोवेटिव वर्क्स। शर्मिला जी, इफ यू कैन स्पेसिफाई, आर यू रेफरिंग टू ऑल एवरीवनस वर्क और इन एनीथिंग इन पर्टिकुलर? All of them. I love the work, the Bangladeshi one with Miss Dinar, Sultana, then the marble person Raja, right, and even the woodcut, amazing. Raja, very nice. Very delighted to see all of these. Thank you. So there is a Nikhil, there is a very interesting article, which is available online, and it's called Art in the Future. It's an interview with Susie Gablick by Russ Walkman. Right. I will send the link. It's a very, very interesting, article I just read a few days back, and there's a quote by this Susie Gablick, and he said that there is a distinct shift in the locus of creativity from the autonomous, self-contained individual to a new kind of dialogical structure that frequently is not the product of a single individual, but is the result of a collaborative and interdependent process. So Gablick, like you guys know, is an American artist, and he's an author, art historian, and a professor of art history. And I highly recommend that you read this link, which I'm going to send. And if we are ending the session, then I would want to say thank yous, but we can go on. Yeah. Just to sum up the overall experience, in fact, it has been a wonderful session, not just to say nice words at the end, but being exposed to a range of these practices, and all of them are in their own, as you use the word locus here, they have very unique practices, and the more interesting it is that the location they themselves are located, जिस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस जगह से वो काम कर रहे हैं, उससे उनका जुड़ाव जो है, जुड़ना वो काफी अच्छे तरह से समझ में आता है, और वो उनके काम में भी रिफ्लेक्ट होता है।
So I find this attachment to their regionality, to the location they belong to, and the reflections which come through their work. So there is a synergy which is inherent in their work, and I especially appreciate that quality in each of their works, even in the morning session and as well as in the evening session right now. In the morning, when I saw for the first time when I saw Arvind's work, which has a significant element of grid in it, and of course, it is the entire his process is based upon grid. And I found that it is an over kind of a encapsulating element, which almost integrates every practice within the idea itself. Mm-hmm. And of course, we have a very interesting article by Rosalind Krauss on this topic of grid. So I would recommend the students who are connected here, they can read about Rosalind Krauss's essay on the grids. Before we conclude, I think there is one more question from for Ritesh. Ritesh, आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे. Do you think displaying your works, Dhoka Bazaar, on the street sides make it more impactful rather than displaying it in the exhibition hall? So आपका अनुभव क्या रहा है कि जिस तरह से आपने इसको एक तो लिमिटेशन था कि आपको गैलरी नहीं मिला या फिर वो एक बात हो गई, बट जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि उसका व्यूअरशिप में क्या असर पड़ा है? मेरा व्यूअरशिप में वही असर था कि स्ट्रीट जो एक्चुअल जगह पर मैंने जो किया तो वहां पर लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये मार्बल में है और ये एक एक्चुअली धोखा बाजार है जी. वो लोगों को लग ही रहा था कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट लाके हुए इंस्टॉलेशन डिस्प्ले किया हुआ है. और जब गैलरी में गया तो वो गैलरी में मुझे करने का फोकस मेन वही था कि मुझे अवेयर करना है लोगों को कि जो स्ट्रीट मार्केट हमारा था, एक हमारा इंडिया का एक ट्रेडिशनल एक स्ट्रीट मार्केट था हमारा, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है. तो मुझे उसको ज्यादा फोकस करना था, लोगों को अवेयर करने के लिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत जरूरी है. राइट. धन्यवाद रितेश. Before, of course, I will hand over the platform to Priyashri later on once for the vote of thanks. I would like to conclude on my end. This has been a very intriguing and learning experience for me, especially as I mentioned, being exposed to new practices and the regional references which have come up. They are way more insightful than just seeing artworks in an urban context. So I have loved this experience, and I thank all the audience who have been patient enough and been connected consistently for all the sessions, even on 9th as well as today. And thank you, Priyashri, for considering me to be a part of this wonderful conversation. And yes, look forward for more engaging sessions in future. It's very strange that when you look today, like lots of them are actually in their villages or their homes. And I don't know what each one is getting affected by, but generally we all want to run to the urban land, including me. I'm from Baroda and I'm living in Mumbai. So I don't know how many of you are in your hometowns. I'm not. Please raise your hand. I want to know who all are in their hometowns, or are you still in the same space where you're in an urban or a second tier cities, or have you gone back to your villages? Like last session, I know lots of them, Abhishek and all, were in the villages. Am I wrong? Like all of you are, where are all of you? If you can unmute, I'm in Kajat, okay? And Isha, I can see you. Where are you? Hi. Yes, I'm in Baroda only. I'm in Baroda. Okay. Yeah. Okay. This, today when Ritesh was actually talking about his work, it really opened up some, areas of something which I have been struggling when I saw it, in his display. And I always had this question, why?
But Ritesh, it was brilliant to know why you conceptualized it, and it's so true that today with the markets and the I'm sorry to say, but all the Reliance Fresh and all these markets which have come up, the lariwalas and our local stores are getting diminished, and they are the ones actually who have helped us during the lockdown. At least my Vijay store and my Om Prakash, they have these small stores, and they have been constantly sending me vegetables. And when the Apna Bazaars and the big bazaars have shut down, I'm talking about the initial lockdown. So as you must have noticed that the artists who shared their work process here, their work is a product of transport lives lived, experiences, exploration, experiments, found objects, using tactile and readable visuality inconspicuously which appear in their works. So often they're ignored in a more or less isolatory rhetoric of art making. Thank you, Nikhil, for triggering the sessions. Gratitude for behind the scene team, Meher, Ramsha, Rohita. And guys, you must send a link. You must look at it. I think it's pretty interesting. And thank you all for coming and spending time with us. Hope to see you again for the next session, which will happen exactly after 21 days. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for joining. See you.